Welcome all. Our today's question is state Newton's second law of motion and obtain or establish that F is equal to ma. यानी हमें प्रूफ करना है यहाँ पे F इक्वल टू ma और हमें बताना है क्या व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. The answer of the first part is according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum, or we can say linear momentum, because there are several types of momentum. So we will specify that fact that it is linear momentum. According to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. Mathematically, we can write it as dp by dt is proportional to F. Or for this purpose, if we don't know about differentiation fact, we can simply write it as delta p by delta t, small p sorry, delta p by delta t is proportional to force. What is delta p and delta t? Delta p or dp, this represents actually small change or change in momentum. And what is delta t? Similarly, delta t is small change in time. So what we can say is delta p by delta t, this sign is known as delta. Delta p by delta t is proportional to force. This is Newton's second law of motion. Now the second part of the question is obtain or establish F is equal to ma. We have to prove F is equal to ma. That is also a statement or mathematical part of second law of motion. So let's prove it. In order to derive this formula, let us consider a body of mass m. At time t equal to 0, the body is moving its velocity u, where u is the initial velocity, m is the mass of the body, and t is initial time, t is 0. Now, if suppose after some interval of time, let that be time t equal to t, the body is moving at velocity v, where v is the final velocity. Now for this instant of time, what is momentum? As we all know that the formula for momentum is mass into velocity. The formula for momentum is mass into velocity. हम सबको पता है यहाँ पे क्या मोमेंटम यानी फॉर्मूला होता है पास मास इनटू वेलोसिटी. मास कितना m, वेलोसिटी इज u. सो व्हाट वी हैव द इनिशियल मोमेंटम टू बी. इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना होगा यहाँ पास mu. हमारा जो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है वो है mu. वैसे ही इन केस ऑफ फाइनल मोमेंटम व्हाट विल राइट इज द फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mv. क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी v था, मास तो m ही रहा पास, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या हमारा इनिशियल मोमेंटम mu है और फाइनल मोमेंटम mv है. लेकिन जो फॉर्मूला पहले हम लिखे उसमें क्या लिखे थे? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम. पहले कितना था mu, अब कितना हुआ mv. इस वजह से हमारे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा पास. प्रूफ करना शुरू करें इसको हम लोग. चलिए तुम्हारा लिखते हैं यहाँ पे हम लोग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mu वी कैन से, और वी हैव द फाइनल मोमेंटम to be mv. Initial momentum mu, final momentum mv. Now the change in momentum is change in momentum or delta p, that is small delta p. This was pi, this is pf, final momentum. Now delta p is equal to pf minus pi. Why? हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होगा हमारे पास हमेशा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. तो फाइनल कितना है pf लिखे, इनिशियल पी आई था. इस वजह से हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा p इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास mv माइनस mu. हमारे पास क्या हो गया डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस mu. इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हमारे चेंज इन टाइम कितना देखें यहाँ पे हम लोग चेंज इन टाइम निकालना हमको, तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन टाइम हमें निकालना है तो वो कितना होगा टी एफ माइनस टी आई होना चाहिए. फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम.
तो इस चीज़ में हमारे पास क्या था, देखिए हमारा जो इनिशियल टाइम था वो 0 था, हमारा इनिशियल टाइम टी आई हमारा 0 है, और टी एफ जो फाइनल टाइम हमारे पास है वो टी लिया गया है। सो हमारा कितना होगा टी एफ माइनस टी आई, यानी टी माइनस 0 होना चाहिए। हमारा जो चेंज इन टाइम या फिर लिखिए डेल्टा टी जो होगा हमारे पास वो कितना आएगा टी एफ माइनस टी आई, यानी जो डेल्टा टी हमारे पास है वो कितना है टी माइनस 0। सिंपली वी कैन राइट टी। हमने क्या निकाला है, हमने डेल्टा पी निकाल लिया और डेल्टा टी निकाल चुके हम लोग। अब आखिरी काम क्या था हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, what we can write is, we all know F is directly proportional to delta P by delta T. Clear? अभी लिखा था हमने डेल्टा P by डेल्टा T, यानी चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू F। उसी को यहाँ यूज करें हम लोग, ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं यूज करना चाहेंगे। डेल्टा P by डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू F। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P by डेल्टा T। नाउ अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया था, हमने डेल्टा पी का वैल्यू निकाल चुके थे। हमने यहाँ पे हम बगल में लिख दे रहा था, याद रहेगा। हमें डेल्टा पी का वैल्यू कितना मिला था, डेल्टा पी मिला था एम वी माइनस एम यू मिला था, और डेल्टा टी कितना आया था हमारे पास, टी आया था। क्लियर? इक्वेशन 1 और 2 में आया था ये चीज़ हमारे पास, तो इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ हटाना है हमको, इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ हटाना चाहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल जब भी हटता है यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट डालना ही पड़ेगा हमको, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए एक कांस्टेंट यहाँ यूज़ किया हम लोग, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी। नाउ इस कांस्टेंट को फिलहाल मान लेते हैं, कुछ वैल्यू के मान लें, फिलहाल के लिए के मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास क्या है कि एम वी माइनस एम यू बचा हुआ है, एम वी माइनस एम यू हमारे पास है इधर टी। अगर यहाँ से हम m को कॉमन ले, अगर यहाँ से m को कॉमन ले लें तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, के m टाइम्स, यहाँ हम m को कॉमन ले रहे हैं तो हमारा कितना है के एम वी माइनस यू बाई टी। क्लियर? क्या आ गया, के एम वी माइनस यू बाई टी। अब आपको शायद याद होगा एक फॉर्मूला, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे अगर मान ली इक्वेशन 3 मान ली, अगर यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारे पास, उसका हम यूज़ करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये तो बात पता ही होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारे पास। यानी यहाँ से अगर देखिए आप तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यू कैन सी दैट a इज इक्वल टू कितना आएगा, v माइनस यू बाई टी होता है। इससे अगर इक्वेशन 4 अगर मान लीजिए आप, तुम्हारा क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। इसी तरह से उसको सॉल्व करना आगे कैसे हमको देखिए, हम क्या करेंगे, इस a का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। हम 4 का यूज करें 3 में, तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया, f इज इक्वल टू के टाइम्स एम ए। क्लियर? वी माइनस यू बाई टी यानी a था, इसलिए हम लिख दिए के टाइम्स एम ए। अब रहा सवाल k का क्या होगा फिर हमारे पास, क्योंकि तो वहाँ इक्वेशन में था नहीं डिराइव करने को। अब k को क्या करें हम यहाँ पे, अब अगर हम k के वैल्यू को 1 मान ले, इफ द वैल्यू ऑफ k इज 1, बिकॉज यहाँ पे क्या माना गया, फोर्स को 1 न्यूटन माना गया है, मास को 1 कीजिए, एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना गया। इन दैट केस हमारा k का वैल्यू 1 आ सकता है, तो मान ले रहे k का वैल्यू 1 अगर होगा हमारे पास, इन दैट केस हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू एम ए। हेंस वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला। इस तरीके से आपको डिराइव करना है इस इक्वेशन को। क्लियर? यहाँ से हम चाहे तो फोर्स का यूनिट भी निकाल सकते हैं। हमारे फोर्स का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, नॉर्मली पता है न्यूटन होता है हमारे पास, लेकिन देखिए हम पहले भी लिख के दिखाते हैं। हमारे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास है, हमारे पास क्या होगा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, हमारे मास का ऐसा यूनिट है केजी, मास के लिए केजी, एंड एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास के लिए हो गया केजी और एक्सेलरेशन के लिए हो गया केजी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हमारा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इतना बड़ा ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या कह सकते हैं, न्यूटन कह सकते हैं। हमारा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, और इसका CGS यूनिट होता है, इसका CGS यूनिट होता है हमारे पास। यूनिट सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, हम दोनों को लेके चलेंगे यहाँ पे हम लोग। ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन
या फिर CGS यूनिट होता है इसका हमारे पास, हमारा CGS यूनिट है इसका, मास के लिए CGS यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका CGS यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है पास? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसलिए क्या किया हम लोग, मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसको और एक नाम दिया था, इसको कहते हैं हम लोग डाइन, DYNE, डाइन। ये चीज क्लियर फैक्ट रखिएगा हमारे पास। या तो हम न्यूटन का यूज कर सकते हैं SI यूनिट में, या फिर हम यूज कर सकते हैं डाइन का CGS यूनिट में। In case of any doubt in solving, please mention in the comment section. If you like our videos, please press the like button. If not subscribe, please do subscribe. Thank you so much for watching and stay tuned for further videos.